اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا, تو ایک کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا, بہت خطرناک پیشنٹ تھا, بہت اصرار کیا, وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو, وہ کہہ رہے نہیں نہیں مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے, انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی, نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت, اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا, یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا, تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا, اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا, اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں, تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں, بڑھ جانا ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتے ہیں پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, تو ناممکن ہے, پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی, 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ, استخارہ نہیں نکالا, خوب سمجھ, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چل. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا, خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی ہم وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے ولاگ پہ آپ دیکھ لیں اس کو, اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے یہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں, اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھ, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان.
مسلمان, اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا الگ. بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہے, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببتا, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, بھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا, لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہو, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانا رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے, صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں, قبول کرنے والا کون ہے؟ نا اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے, ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا.
मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा था ना कैसे जिरहें बनाई इन्होंने, इतनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, का तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते, पेवज़दा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है? हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नजर में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नजर में लिबास की बड़ी वैल्यू है। ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहन के। तो ये सियासत थी उनकी और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है? आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका, वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हों, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है तो हमसे क्या लड़े, ठीक है ना। तो लड़ाई के लिए जाहिर है हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता है हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया? भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोब दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोब था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवंज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है भाई, आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना 3 पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजाल है कोई पेवंज़दा कपड़े पहन के चलाए। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे। क्योंकि हर वक्त ना लोग उलमा को ये देखो सादा होने चाहिए, इनकी पगड़ी देखो, इनके कपड़े देखो, और हमारे तो कोई है भी नहीं। तो खैर, तो वो मैं जल्दी से वो बता दूं ना, वो जो शरबत का गिलास रखा ना, तो उस डॉक्टर साहब मुझे वाकया सुना रहे थे, आज ही की बात है, शुगर के बड़े स्पेशल साहिब गपशप थी। तो वो कहने लगे कि उसने कहा कि देखें जो सहाबा ने दरिया में घोड़े दौड़ाए थे ना, पुल नहीं था वहां पे। पुल होता तो दरिया में घोड़े नहीं दौड़, और अगर पुल बनाने का टाइम होता फिर भी नहीं दौड़ा। फिर ये मैं अपनी तरफ से एक इजाफा कर रहा हूँ, पुल बनाने का टाइम होता, असबाबो वसाइल होते, फिर भी नहीं जाते, और वापस जाके दोबारा आने का टाइम होता फिर भी दरिया में घोड़े नहीं डालते। वो एक मजबूरी थी कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी यही किया है। उसने क्या किया कि बुजुर्ग भी रखे हुए, अल्लाह से दुआएं मांगे और फिर असबाब और वसाइल इख्तियार किए। भाई यहाँ पानी है तो पानी को क्रॉस करना हमारे लिए, सॉरी पीछे समंदर है, बीच में खुश्की है, पानी नहीं था, खुश्की से हट के आगे पानी है। तो अब आगे हम घोड़ों पे जाएंगे अगर, तो घोड़ा पानी में नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा, सहाबा कराम ने पानी में घोड़े दौड़ा लिए थे तो हम भी खुश्की तक जाएंगे और कुस्तुनतुनिया में बैक साइड से हमला करने के लिए ना, बाकी बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह फूंको वाली सरकार होती तो मसला ही हल हो गया था। ये तो पहले जहन में आ जाता ना, मेरे बहुत लेट आया दिमाग। एक शुफ सरकार हजरत वो सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने पास रखता शुफ, और पूरा कुस्तुनतुनिया ही बढ़ जाता पूरा। अभी जो इलेक्शन में हुआ है ना, आपको पता है ना, जो वोटिंग हो रही थी, फलां जीत रहा है, मीम बनाई पाकिस्तानियों ने, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, शुफ एकदम वो नीचे हुआ, बड़ी टाइट मीम बनाई है कि इलेक्शन में यही हुआ है, बंदा कौन जीत रहा है एकदम शुफ करके, शुफ फौरन नीचे। ऐसी ही रिपोर्टें चेंज हो रही थी ना इलेक्शन की, जो लोग टीवी के आगे खबरों में बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान में एक सरकार है जिसको सच्ची मुच्ची की शुभ सरकार है, वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। तो इसलिए जो सियासतदानों में जो समझदार लोग हैं ना, वो उस जो पाकिस्तान की जो असल शुभ सरकार है ना, उससे बना के रखते हैं कि हम बेशक एक वोट भी ना मिला, जब इन्होंने कहा शुभ फौरन हम कहां चले जाएंगे ऊपर। तो अच्छा खैर, समझ गए ना कौन सी सरकार है। एक तो ये सरकार है, जो एक और सरकार है असल शुभ सरकार, बड़ी पावरफुल सरकार है, वो उसका शुभ असल शुभ है, उसको हम मानते हैं कि यार वो जब शुभ करे ना, वो ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, मशवरा किया, भाई क्या कर, मशवरा यही तय हुआ यार कुछ ना तो करना पड़ेगा। तो एक माहिर ने मशवरा दिया, देखो हम जो हमारे बहरी जहाज हैं, कश्तियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं, जहाज नुमाई थी, तो हम इनको जब तक खुश्की पे चला के आगे पानी तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तो हम ये किला कभी भी फतह, मजीद 600 साल लग जाएंगे हमें, नामुमकिन। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, जाने जाया हो रही है, रोज तीरंदाजी हो रही है, लोग डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, और पहले भी कई हमले नाकाम हो चुके हैं, अब ये रिस्क लेना पड़ेगा, आर या पार। ये बहुत मुश्किल काम था। क्यों? रात में लोग सो रहे हैं, रातों रात आपने ये करना है। अब खुश्की पे कैसे चलाएं भाई पानी, यानी उस जहाजों को? तो उसका तरीका ये है कि जितने जानवर है ना, ऊंट, गाय, दुम्बे, सब ज़बह कर और सबकी चर्बी को पिघला के जमीन पे डाल, और ये सुबह सादिक से पहले पहले काम क्या हो जाना चाहिए, खत्म। और उसके बाद ये कश्तियां रख के ना, लकड़ियां रख के उनको धक्के देंगे, क्योंकि वरना कौन ले जा सकता है, क्योंकि अगर धक्के दे के तो नामुमकिन है ना खुश्की पे, आप किसी एक छोटी सी लांच को धक्का देने की कोशिश करो, कोई भी नहीं दे सकता। तो होगा ये, और देंगे भी इतना टाइम लग जाएगा कि दुश्मन तो देख लेगा भाई ये लोग तो यहाँ से आए, तो रातों रात ये काम करना है। कितना बड़ा ये गोरों ने हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा काम किया है जिसका तस्वुर नहीं था, इतनी मेहनत खर्च हुई है इसके ऊपर। क्या मोटी मोटी तोंद और मोटे मोटे पेट होते अगर उस वक्त मुसलमानों
खानों के, और सुबह शाम बिरयानी और कोरमे के ढक्कन खुल रहे होते, और तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे, शबे बारात के नाम पे ये सब चीजें खा रहे होते, तो ये कर लेते? बोलते क्यों नहीं? मैं बार बार कहता हूं, किसी बड़े पेट वाले का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। कुछ लोगों का नेचुरली पेट बड़ा हुआ होता है, वो तो कुदरत की तरफ से, वो सहाबा में भी था, बड़े बड़े बुजुर्गों में था। लेकिन ये जो खा खा के तोंदे निकल रही है ना, ज्यादा खा खा के, ये बहुत बुरा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, इस उम्मत में सबसे पहली जो बुराई आएगी ना, झूठ और बड़े पेट, मोटापा। ये हदीस है सही। कुदरती तौर पर किसी का पेट बड़ा है तो एक अलग बात है। तो अब उन्होंने क्या किया, फौरन वो सारी जानवरों को रात को, भाई अब ये इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है, फिर अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे बस में जो था हमने कर दिया। तो वो पिघला के पूरा फर्श बनाया रातों रात। जो ईसाइयों की स्टेट थी, उनके तसव्वुर भी नहीं था कि यार कोई किसी का दिमाग यहां भी जा सकता है, किसी का दिमाग यहां भी जा। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। उस वक्त काश वीडियो कैमरे होते ना, वो फिल्मा लेते ये सारी चीजें। फिर वो रातों रात कश्तियां ले जाके ना उस पे सबको पानी में उतार दिया। सुबह सादिक से पहले वो बहुत बड़ी फौज मुजाहिदीन की वो पीछे समुद्री जहाजों पे सवार हो चुकी थी। सुबह सादिक से पहले ये काम हो चुका, और फिर बैक साइड से ना पानी पे उतरे वो लोग, और फिर उन्होंने हमला। ईसाइयों को तो उन्होंने तो आगे देख रहे हैं ना, वो उनको क्या पता पीछे से भी कोई हमला कर सकता। इधर से इन्होंने तीर अंदाजी की है, उधर से पीछे से हमला किया। वो तो हैरान हो गए, यार ये बंदे जो आए कहां से हैं ये लोग, बीच में तो खुशकी है, उसमें तो जहाज आ ही नहीं सकता। ये स्ट्रगल और ये मेहनत करनी पड़ती है भाई, फिर कौमें बनती। जू से नहीं बन जाती खाली कौम, समझ रहे हो? अभी छोड़ो ये, फिर जू काट देना नहीं, मैं अच्छा नहीं। तो वो है ना, मैं जापान गया, जू को देखा है नहीं? आप मीम्स नहीं देखते आप लोग मुझे। खैर, साबिक वजीर आजम का बयान था कि मैं जापान गया, जू आवाज आई, फिर मैं जापान गया, जू आवाज आई। ऐसे बनती है कौमें, जू। उसमें लोगों ने पड़ी ये कट कर देना, वो न फूंको, जो हमारी सरकार जो असल फूंक वाली है वो मसला। अच्छा खैर, तो ये है असबाब। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे दरिया के आगे आके खड़े हुए हैं, तो अगर वहां पुल होता तो फिर लाठी को हुक्म होता कि समंदर पे मारें और वो 12 चश्मे, उससे 12 रास्ते बन जाएं, फिर होता? अल्लाह में कहते हैं पुल से जाओ भाई। या वापसी का ऑप्शन भी अगर होता ना कि भाई फिरौन पीछे से आ रहा है, आगे रास्ता नहीं है, तो ये वाला रास्ता यहां से, तो भी ये ना होता, ये वाले रास्ते से जाएं। जब तक असबाब इख्तियार करना मुमकिन होता है, अल्लाह की आसमानों से मदद नाजिल नहीं होती। अल्लाह कहते हैं पहले पूरे असबाब तुमने इख्तियार करने हैं, उसके बाद फिर मैं जहां तुम खत्म होगा वहां से मैं शुरू होऊंगा। हम लोग कुछ करने से पहले ही डायरेक्ट कहां इस्तिखारों पे चले जाते हैं, डायरेक्ट। तो इसमें एक बात खूब ये भी अच्छी तरह समझ लो कि आजकल ना एक तो लोगों में तवक्कुल वैसे ही नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है, और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में गैर जरूरी तवक्कुल भी आ जाता है। उलमा ने लिखा है अगर आपको अल्लाह ने माली वसाइल दिए, मैंने बहुत लोग देखे हैं, जॉब गई और रोड पे आ गए, एकदम बर्बाद हो गए। कारोबार करोड़ों का बिजनेस चल रहा था, कोई नुकसान हुआ। कुछ दिन पहले एक बंदा मिला, करोड़ों रुपए में खेल रहा था, पोल्ट्री फार्म का उसका बिजनेस था पेशावर में। तो कह रहा है यार कोई बीमारी आई, सारी मुर्गियां मर गई और मैं दिवालिया निकल गया, मेरा डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा काम किया क्यों आपने, क्या आपको पता नहीं है मुर्गियां बीमारियां आती हैं? कह रहे आती हैं, लेकिन मैं तो वैक्सीन हूं। मैंने कहा क्या आपने तहकीक नहीं की कि वैक्सीनेशन के बाद भी बाज़ दफा सारी मुर्गियां मर जाती हैं? तो कुछ तो आपको रखना चाहिए था ना। इसलिए उलमा ने बयान किया है भाई कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कम से कम 1 साल का जो है ना नान नफका संभाल के रखो कि अगर मैं जॉबलेस हो गया तो 1 साल में इतना कमा लूं, 1 साल का मैं इतने अपने पास रिजर्व रखूं कि कम से कम 1 साल में अपनी बीवी बच्चों को खिला सकूं, और इस दौरान में कोई दूसरा कारोबार कर सकूं, कोई दूसरी जॉब तलाश कर सकूं। हाँ, इससे बहुत ज्यादा 10-10 साल की 20-20 साल की प्लानिंग फिर ये तवक्कुल के खिलाफ है। लेकिन 1 साल 2 साल 1.5 साल कुछ तो करे ना आदमी। नहीं जी, जिस अल्लाह ने आज खिलाया कल भी खिलाएगा। तो अगर अल्लाह ने इस तरह से वादा किया होता तो फिर लोग रोडों पे क्यों बैठे हुए होते, झोपड़ों में क्यों सो रहे होते? फौरन एक आयत पढ़ लेते हैं, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया, अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन आप पूरे असबाब और वसाइल इख्तियार करोगे। हाँ, हवस ना करो जैसे जमा कर करके लोग पागल हुए हैं, ये गलत है। लेकिन ऐसा तवक्कुल जायज नहीं है कि आप जो है वो जो अल्लाह ने असबाब और वसाइल रखे हैं उससे भी को भी आप इग्नोर करना शुरू कर दो। हालात का कुछ पता नहीं होता। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह ताला तो बहुत तवक्कुल वाले थे, लेकिन उसमें बहुत हसास थे वो। जब जबान से जो मुंह से निवाला छिनता है ना, ईमान भी जाता है आजकल लोगों का। एक रिवायत है, अगरचे रिवायत ज़ईफ है, लेकिन कादल फक्रू अन यकून कुफरन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फक्र फाका बाज़ दफा कुफर तक पहुंचा देते हैं। औरतें अपनी इज्जतें बेचने पे आ जाती हैं फक्र फाका की वजह से। तो ऐसा तवक्कुल ना नहीं किया जाए। तो इतना कम से कम अपने पास हो कि भाई कल आप अगर खुदा न खास्ता बेरोजगार हो जाते हैं, और ये कि आपने मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है और फर्ज करके बैठे हुए हैं कि चूंकि मैंने अल्लाह से तहज्जुद में दुआ मांगी है, अब इन पे कोई बीमारी नहीं है। दुआ भी मांगो बीमारियों से। मेरा तो पूरा देखो ना, अभी 35 मुर्गियां मर गई मेरी। बीमारी आई तो एकदम जनाजे उड़ो। छोटी सी मेरी गलती थी, लेकिन वो 2.5 साल से मरी नहीं थी, अब मरी है तो टक 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 कुछ बच गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी नहीं
मरी, क्योंकि हमारे घर ही के चूजे थे जो बड़े हो गए, तो एक गलती हुई थी मुझसे, अब इंशाल्लाह आइंदा वो गलती नहीं करूंगा, लेकिन तजर्बा तो बढ़ गया ना, नुकसान तो हो गया ना। तो अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल, इसका एक मतलब है जो शरीयत ने बताया। तो वो शुगर के पेशेंट ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा हजरत जो घोड़े दौड़ाए थे ना सहाबा किराम ने, वो पुल नहीं था वहां पे, इस वजह से मजबूरन दौड़ा लिए थे, तो अल्लाह मियां ने मुझे खाने की इतनी चीजें दी हैं कि मैं भूख से मर नहीं रहा हूं, अगर मर रहा होता तो जान बचाना फर्ज थी, फिर मैं ये शरबत का गिलास अल्लाह पे तवक्कुल करके पी लेता, कि फिलहाल तो जान बचाओ, फिर देखेंगे शुगर कहां जा रही है कहां नहीं जा रही, या और चीजें जो है वो मेरे लिए दुनिया में खत्म हो गई हैं, या शुगर से मैंने मरने का इरादा ही कर लिया है, खुदकुशी का इरादा ही कर लिया है, तो पी लूंगा। कभी भी इस तरह के ये बेमौका तवक्कुल होता है। एक और हमारे दोस्त थे, उनको भी शुगर, वो भी इसी तरह कह रहे यार बंदा खाता हुआ बस जो 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 टेंशन लेता है ना वो मर जाता है। ये सब फजूल किस्म की बातें होती है। अल्लाह ने मुसलमान जो तरक्की नहीं कर रहा ना, उसमें इन बातों का बहुत बड़ा दखल है। जब ये अपर लेवल पे होती हैं तो फिर अपर लेवल पे नुकसान होता है, इनफिरादी जिंदगी में इस तरह की बातें होती है तो इनफिरादी जिंदगी में नुकसान होता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अब जल्दी से मैं बात को समेट के खत्म करूं जो बयान में लेके चला था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, तदउ मन अदबरा व तवल्ला। तो अल्लाह के हुक्म की जो ऑर्डर है ना, अल्लाह का जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू इसलिए भी है कि वो साहिब कमाल और साहिब कुदरत है। उसकी वैल्यू इसलिए भी है कि जितना वो हमारा करीब है इतना रिलेशन हमारा किसी और से नहीं है। देखो माँ बाप सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो हमें माँ बाप देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कहते हैं हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनि उम्महातिकुम। तुम जब अपनी माँ की पेट में जनीन थे, जनीन कहते हैं छुपे हुए, जब तुम्हारे माँ बाप भी तुमको नहीं जानते थे, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, उस वक्त से तुम्हें जानता। तो अल्लाह से ज्यादा इंसान का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तीसरी चीज अल्लाह कहते हैं जितने मेरे एहसानात हैं, तीसरी चीज एहसान होता है ना जिसकी वजह हम किसी के ऑर्डर को मानते हैं, मेरे एहसानात जितने ज्यादा हैं इतने तो यानी अल्लाह कहते हैं मेरे एहसानात को ना तुम कलम से लिखना शुरू करो, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन के घिस के खत्म हो जाएंगे और समंदरों की स्याही उन कलमों में इस्तेमाल होकर खत्म हो जाएगी। और वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को लिखने बैठोगे कलम घिस के खत्म और समंदर की स्याही खत्म, अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी। और एक एक नेमत इतनी पावरफुल है ना, करोड़ों खरबों में भी वो सस्ती है। एक आंख की नेमत देख लो, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, खून पसीने की कमाई हो, एक बंदा के करोड़ दे या आंखें दे, क्या दोगे आप? करोड़ रुपए। डाकुओं को दे रहे होते हैं ना जान बचाने के लिए, डाकुओं को दे नहीं रहे होते सुबह शाम के, जान बचे यार। आंखों की नेमत है, सुनने की नेमत है, चखने की नेमत है, हर नेमत, इतनी कीमती नेमतें, एक एक नेमत जो अल्लाह ने इंसान को उसकी बॉडी में जो नेमतें लगा दी हैं, इतनी कीमती नेमतें हैं। तो ये अल्लाह के एहसानात हैं। अल्लाह कहते हैं इसका सोचते रहोगे, ये एहसानात कभी खत्म नहीं होंगे। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ताला का मामूल था, कहते हैं मैं रात को सोने से पहले ना, क्योंकि लोगों की आदत होती है ना कि ये भी मेरे साथ गलत हुआ, ये भी मेरे साथ गलत हुआ, ये मसले मेरे साथ, बाज लोग हमेशा मुंह उनका बेचारों का आड़ा तिरछा ही रहा, महंगाई हो गई, ये वजीर आजम ही नहीं बन रहा, और अबे ये तो तुम्हारे मसले हैं ही नहीं, ये क्यों ले रहे हो टेंशन यार, हमारा काम थोड़ी है, वो टेंशन लो जो तुम्हारी है। तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सुबह शाम। तो हजरत मौलाना शरीफ थानवी रहमहुल्लाह को किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खत लिखा कि हजरत ये भी मेरे साथ मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो हजरत की मुलम्मा चूंकि मुस्लिह थे ना, पीरो मुर्शिद, पहले पीरो मुर्शिद ऐसे होते, तो उन्होंने पूरे खत के आखिर में एक जवाब लिखा कि अफसोस के शुक्र का जुमला एक भी, सारे मसले ही बताए हैं। तो समझ गया कि भाई तरबियत नहीं हो रही है, तरबियत हो गई होती तो क्या बता रहे होते, हजरत ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, ठीक है ना। तो खैर वो तो फिर तरबियत हुई उनकी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बुजुर्ग बने वो। तो वो फरमाते थे कि मैं जब रात को सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ, ये नहीं देखता कि क्या क्या गलत है, ये देखता हूँ क्या क्या, तो मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले सेहतमंद हैं, बच्चे मेरे माशाल्लाह सारे जिंदा हैं और सेहतमंद हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी है लेकिन खतरनाक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कल घर का राशन कल का कम से कम है, नाश्ते का भी, दोपहर खाने का भी, रात खाने का भी, अल्लाह का शुक्र। सोने की जगह भी है, बहुत से लोगों के पास रात को सर छुपाने की जगह नहीं है, बहुत से लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े 1000 गज के बंगलों में एयर कंडीशन रूम में सो रहे हैं, कैंसर है खतरनाक, कोई टीबी हुई हुई है, कोई ऐसी डेंजरस बीमारी हुई हुई है, हम उनसे करोड़ा गुना अच्छे हैं। तो हर चीज में ना अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत, उससे क्या होता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कितनी नेमतें। और सबसे बड़ी नेमत ईमान, हम उस अल्लाह को पहचानते भी हैं जिसने हमें पैदा किया। तो इस तरह से ना सोचना चाहिए हमें भी। जब पानी भी पियो ना, हदीस में आता है अल्लाह बंदे से खुश हो जाता है जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। आप काफिर नहीं कहता, आप किसी सेकुलर, आज को मुसलमानों में भी काफिरों जैसे बहुत हो गए हैं, आप बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो गुस्सा करेगा आपके, किसी मौलवियों के पास से लग रहा है बैठ के, मौलवियों के पास से बैठ गया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवियों की बात, मौलवियों की थोड़ी है यार, ये जिसने तुम्हें दिया है आसमान से बरसाता है तुम्हारे लिए। फिर कहता है, अल्लाह कहता है कि फसलकहु यनाबी फिल अर्ज़, जमीन के सोतों में दाखिल करता हूं, अराअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन, बताओ ये पानी और नीचे चला जाए तो कौन है जो निकाल के लाएगा। पानी एक सतह तक नीचे जाता है, पेट्रोल वाली सतह पे नहीं पहुंचता पानी, अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है भाई, यहां तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे, वरना कौन सी चीज है उसको नीचे जाने से रोक रही है, और नीचे चला जाता। फिर पेट्रोल वाली कंपनियों को ऑर्डर देते कि निकाले पानी, एक एक नेमत, ये पानी पिया करो, सोचा करो भाई
भाई ये कहां से आ रहा है? फिल्टर का पानी भी तो कहीं ना कहीं से आ रहा होता है ना, जो हम पी रहे होते हैं। तो एक एक नेमत, तो हर नेमत पे इंसान को सोचना चाहिए, फिर फौरन दिल से आवाज निकलनी चाहिए, अल्लाह तूने इतने एहसानात किए, तो ऐ अल्लाह अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता। एक एहसान ये कर ले कि अपनी नाफरमानी से बचा ले, क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म को तोड़ना छोटा जुर्म नहीं है। इसी को ये जो मैंने आयत पढ़ी है, तदउ मन अदबरा व तवल्ला, जो ऐसा रब, मैंने बताया था ना रिलेशन, मोहब्बत और कुव्वत, बाज दफा रिलेशन नहीं होता सिर्फ मोहब्बत होती है, बाज दफा सिर्फ कुव्वत होती है। अल्लाह में तीनों चीजें जमा है और अला वजहिल कमाल जमा है, तीनों चीजें, मोहब्बत भी है, रिलेशन भी और ताकत भी, एक ही जात में। और ऐसी ताकत जो किसी में नहीं, ऐसा रिलेशन जो किसी में नहीं, ऐसे एहसानात जो किसी में नहीं। फिर भाई अल्लाह जब किसी बात का ऑर्डर देगा ना, वो कह रहा है नमाज पढ़ो, तो फिर आपको पढ़नी पड़ेगी। वो कह रहा है जिना के करीब मत जाओ, तो अब आपको करीब जाने की इजाजत नहीं है। वो कहेगा बूढ़े माँ बाप के सामने उफ ना करो, तो उफ करने की इजाजत नहीं है। वो अगर कह रहा है कि सूद मत खाओ, तो खाने की इजाजत नहीं है। वो अगर कह रहा है कि नजर की हिफाजत करो, तो हिफाजत करनी पड़ेगी। समझते हो कि नहीं समझते? तो सबसे पहले तो नमाज है, वही इंसान, वही सीधी नहीं हो रही, आज वही सीधी नहीं हो रही, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, ये ऑप्शनल नहीं है और ये छोटा जुर्म नहीं है। इसी को अल्लाह ने कहा तदउ, ये उसको बुलाएगी जो अल्लाह के हकाम से मुंह मोड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह का दावा बरहक है। अक्लमंद लोग उस दावे को मान लेते हैं और अल्लाह के हुक्म को पूरा करना शुरू कर देते हैं। कहीं कोताही हो तो अल्लाह कहते हैं मैं गफूर रहीम हूं, तौबा करो। ऐसा नहीं हो कि बस जरा सी गलती हुई पकड़ के जहन्नम में फेंक दूंगा, ना ना ना, तौबा का मौका देता हूं, तौबा करो। तो और क्या रह गया भाई? अब क्यों नहीं शरीयत पे चले इंसान? है भाई, जब वो कह रहा है कि आने की कोशिश करो, सीधे रास्ते पर आओ, गलती हो रही है माफी मांगो, और अल्लाह को माफ करना क्या है? पसंद है। माफ करना भी उसको अच्छा लगता है कि चलो गलती हुई है तो भागो तो नहीं ना मुझसे, ये ना, गलती हो गई है, आदम अलैहिस्सलाम से हो गई थी, तौबा की ना, रोए अल्लाह के सामने, तुमसे हो जाए तुम भी रो दो। रोना नहीं आता, रोना इख्तियार में नहीं है, सिवाय अभी मैं नाम लेने वाला था कि बाज एक्टर ऐसे हैं जब चाहे रो लेते हैं, बैठे हैं मजहबी लेकिन एक्टर टाइप। खैर, तो अल्लाह कहते हैं रोना नहीं आता ना, रोने जैसी सूरत बना लो तो भी क्या कर लूंगा। तो अब क्या रह गया भाई? कहां इस्लाम, अब मुश्किल कहां से रहे? तो रोना आ जाए ठीक है, नहीं आया, अल्लाह कह रहे रोने वाली शक्ल बना लो, जैसे रो रहे हो, बस काफी है, ये भी मान लो। फिर भी अगर कोई ढीठ का बच्चा नहीं आ रहा ना, तो फिर कुरान कहता है अनुलजिमुकुमुहा व